نوشہرہ کے تو بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر ہمیں یونیورسٹی کی ضرورت ہے، یونیورسٹی نہیں ہے نوشہرہ میں۔ جو بھی آتا ہے اپنے مفاد کے لیے آتا ہے، عوام جو ہے تو بالکل مہنگائی کے عذاب میں پس رہے ہیں، تو ہم کو الیکشن کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ عوام سے ووٹ لیے تو عوام کے لیے بھی کام کرتے ہوتے ہیں۔ عوام کے لیے تو تب کام کرتے ہیں نا کہ جب ان کا مفاد ہو، جب مفاد نہ ہو تو وہ پھر کام نہیں کرتے۔ یہ جو لوگ ہیں جو الیکشن کے لیے کھڑے ہیں، کیا یہ مسائل حل نہیں کریں گے؟ نہیں سر، یہ بالکل اپنے گھر آباد کرتے ہیں اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ میری اس وقت 62 سال عمر ہے، تو میں نے تو کوئی اچھا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک آتا ہے۔ ابھی جو 2022 کا جو سیلاب آیا تھا، تو یہ یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ سیلاب 2010 سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتا تھا اگر یہ پشتیں نہ ہوتی۔ 2010 کے سیلاب کے بعد جتنے ہمارے نوشہرہ کا نقصان ہوا، جتنی تباہی ہوئی، پرویز خان خٹک کی واحد اس طرح ایک کی بندہ ہے جس نے نوشہرہ پر یہ احسان کیا کہ اس عوام کو، اس پاکستان، اس خیبر پختونخوا نوشہرہ کو خاص کر سیلاب سے بچایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلع نوشہرہ میں، آپ کا میزبان محمود جان بابر۔ اس ضلع نوشہرہ کی اپنی ایک تاریخی اور سیاسی حیثیت ہے۔ جب بھی پاکستان میں سیاست کا ذکر ہوتا ہے تو نوشہرہ کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے آ ہی جاتا ہے، اور یہ جو گزشتہ 1 سال کی سیاسی تاریخ ہے، اس میں آپ نے کئی بار ضلع نوشہرہ کا ذکر سنا۔ وہ اس لیے کہ جب پاکستان کی ایک جماعت تحریک انصاف میں ایک اور جماعت نے جنم لیا تو اسی ضلع نوشہرہ سے جنم لیا۔ جس حلقے میں موجود ہوں یہ ہے NA-33 کا حلقہ گزشتہ 2 انتخابات میں، اور اس کے تحت آنے والے تمام صوبائی اسمبلی کے حلقے یہاں پہ تحریک انصاف ہی نے وہ جیتے۔ لیکن اس بار ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ یہاں سے جتنے بھی قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی حلقے ہیں ضلع نوشہرہ میں، یہاں پہ وہی امیدوار جو کہ تحریک انصاف کی ٹکٹ سے انہوں نے گزشتہ 2 الیکشن لڑے، وہ اس بار تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو NA-33 کے جو بڑے امیدوار بزرگ سیاستدان خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک ہیں، وہ اس وقت NA-33 سے امیدوار ہیں۔ انہوں نے ہی اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی ہے۔ انہی کی ایکٹیویٹیز آپ کو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں سیاسی طور پہ ملتی ہیں۔ اس حلقے کی اہمیت کیا ہے اور یہاں کے لوگ آنے والے الیکشن میں کیا کرنے جا رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ جی، میں اس وقت نوشہرہ کے مین بازار میں موجود ہوں۔ یہاں پہ کافی گہما گہمی ہے، لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں سے بہت سارے علاقوں کو گاڑیاں بھی جاتی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں، آپ کو مسائل کا پتہ ہے کہ نوشہرہ میں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یار بھائی، اس طرح دیکھا جائے تو انفلیشن جو ہے یہ مین کارن ہے ہر چیز کا۔ ابھی دکاندار کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہر بندہ بازار میں جس کا دکان ہے نا، اس کا کرایہ زیادہ ہے، تو وہ ابھی انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنا کرایہ پورا کرے یا اپنا پروفٹ نکالے۔ پوچھا تھا کہ اس وقت نوشہرہ جو ہے بہت سیاسی لحاظ سے بڑا رچ ایریا ہے، تاریخی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس وقت اس نوشہرہ کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ نوشہرہ کے تو بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پر، مسائل تو ہے، لیکن یہاں پر ہمیں یونیورسٹی کی ضرورت ہے، یونیورسٹی نہیں ہے نوشہرہ میں۔ میں نے جو دیکھے، میں تو خود ادھر نہیں رہتا ہوں، باہر سے آیا ہوں، اتنے زیادہ مجھے وہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں جو دیکھتا ہوں یونیورسٹی میں اور ہاسپٹل۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت پھر الیکشن ہونے جا رہا ہے، امیدوار مختلف وعدوں اور نعروں کے ساتھ میدان میں ہیں، تو جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے اس نوشہرہ کے کون سے بڑے مسائل حل کیے ہیں اور اب کتنے مزید ایسے مسائل رہتے ہیں؟ سر جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو بھی آتا ہے اپنے مفاد کے لیے آتا ہے۔ چاہیے یہ آپ بجلی کا بل اٹھا لیں، گیس کا بل اٹھا لیں۔ ابھی میرا بل آیا 10,000 روپے سوئی گیس کا، اس میں 4,500 روپے کا جو ہے تو انہوں نے فکس چارج کے نام پر 2,000 الگ لگائے ہیں، وہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو عوام جو ہے تو بالکل مہنگائی کے عذاب میں پس رہے ہیں، تو ہم کو الیکشن کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ مسائل کا حل ہی ان کے پاس نہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کا فائدہ تو عوام کے لیے ہے، کیونکہ بغیر الیکشن کا تو پھر یہ جو بڑے ہیں یہ عوام کے پوچھیں گے بھی نہیں اگر الیکشن نہیں ہوتا۔ الیکشن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ووٹ مانگنے کے لیے یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں،
اسی وجہ سے ہمارے جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام کی جو ضرورتیں ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہمارے علاقے کے پرویز خٹک ہے, اس نے بہت سے ضرورتیں ہمارے علاقے کی پورا کیے ہوئے, کچھ مسائل رہ بھی گئے اور کچھ اس نے کر دیے ہیں. جس طرح عمران خان نے حکومت کے لیے بہت کام کیے گئے انٹرنیشنل سطح پر, اور جس طرح نواز شریف نے ملک کے لیے کام کیا ہے, اسی طرح سارے لیڈر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اپنے عوام کے لیے, اور الیکشن کی وجہ سے کرتے. اگر یہ الیکشن پاکستان سے اپنے حکومت سے ختم ہو جائے تو پھر یہ عوام جو ہے یہ اسی طرح رہیں گے, بغیر ماں باپ کے رہ جائیں. جی, جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا, اس حلقے کی اپنی ایک بڑی سیاسی اہمیت ہے. یہ جو ضلع نوشہرہ ہے, یہاں سے ماضی میں بڑے اہم لوگ منتخب ہوتے رہے جو نیشنل لیول پہ انہوں نے جا کے پالیٹکس میں حصہ لیا. جیسے کہ آپ کو نصیر اللہ بابر صاحب یاد ہوں گے, اجمل خٹک صاحب یاد ہوں گے, یہاں سے قاضی حسین احمد مرحوم جو ہے وہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں سے منتخب ہوتے رہے. تو لیکن 2013 سے پہلے یہ حلقہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن 2013 کے بعد یہ تحریک انصاف کے پاس گیا, اور اب یہاں پر اس کا مقابلہ, تحریک انصاف کا مقابلہ اسی سے نکلی ہوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے جس کے سربراہ پرویز خٹک صاحب ہیں. ذرا یہ بازار میں پوچھتے ہیں لوگوں سے, کاروباری زندگی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کاروبار کیسا ہے. السلام علیکم جی صاحب, یہ بتائیں گے کہ یہ ایک طرف تو الیکشن چل رہا ہے لیکن کاروبار وغیرہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کاروبار تو بہت نارمل ہے, ہمارا تو خیر سیزن کا مسئلہ ہے, لیکن کاروبار وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اب کاروبار بالکل بیٹھ گیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اسمبلیاں جو وجود میں آتی ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے تو کام نہیں کرتے ہیں نا. پھر بھی وہ تو اسی طرح مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے کام کر لیتے ہیں, ہمارے لیے کام نہیں کرتے. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوام سے ووٹ لیے تو عوام کے لیے بھی کام کرتے ہوتے ہیں. نہ, عوام کے لیے تو تب کام کرتے ہیں نا کہ جب ان کا مفاد ہو. جب مفاد نہ ہو تو وہ پھر کام نہیں کرتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ ہماری خدمت تو کریں نا. وہ تو مطلب ہے کسی اور کی خدمت پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے تو یہ خدمت کے لیے کافی نہیں ہے, یا اوپر کی اسمبلیاں بھی کریں؟ نہیں, فنڈ جو ہے وہ آپس میں مل کر بانٹ لیتے ہیں. وہ تو مطلب ہے عوام تک تو نہیں پہنچتا. اچھا, یہ تمام جو منتخب لوگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ فنڈ آپس میں بانٹ لیتے ہیں؟ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اچھا, مطلب ہے کہ ہمیں جو تکلیف ہے وہ اسی طرح. اب رسال پور میں لوڈ شیڈنگ ہے, وہ 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے رسال پور میں. یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا اور معیار ہے. تو ہر جگہ پہ لوڈ شیڈنگ کو مطلب کسی قسم کی بھی سہولت نہیں ہے. تو بجلی کا نظام یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ تو خیبر پختونخوا کا مین ضلع ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے جی بجلی کا نظام. کہ یہ جو لوگ ہیں جو الیکشن کے لیے کھڑے ہیں, کیا یہ مسائل حل نہیں کریں گے؟ نہیں سر, یہ بالکل اپنے گھر آباد کرتے ہیں اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں. یہ اپنے مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں, اپنی جو ہے نا سیاست چمکاتے ہیں. مطلب ابھی یہ پرویز خٹک کے 9 سال حکومت میں رہے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیے. عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیے. ووٹ ہمارا سب عمران خان کو, یہ پی ٹی آئی کو ہم دیں. جی ٹھیک ہے. جی, آپ لوگ کسے ووٹ دیں گے یہ جو باقی لوگ ہیں؟ عمران خان کو. جب گلی بازاروں میں پھر کے عوام سے بات کرتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ارد گرد کچھ بھی ہوتا رہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک گڑی ساز چاچا ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نوشہرہ کے اس مین بازار میں. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ زندگی کے بارے میں اور اس الیکشنز کے بارے میں ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر جناب. کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. تو ان 45 سالوں میں اس نوشہرہ کو آپ نے خود بنتے دیکھا, یہ کس کے دور میں زیادہ آباد ہوا؟ یہ سر جی ابھی کوئی 8-10 سال ہوئے یہ لوگ زیادہ آباد ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے جو تھا نا اتنے لوگ نہیں تھے. لیکن ابھی ہمارے اس علاقے میں باہر کے لوگ زیادہ آ گئے ہیں. باہر کے کیسے, کن باہر کے ضلعوں کے؟ ہاں جی, باہر ضلعوں کے. جی جی. تو اس سے کیا فرق پڑا یہاں پہ, زندگی بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ بس بازار تو بڑھ گئے ہیں, لیکن حالات زندگی تو آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کہ کیا حالات ہیں. تو کون حکومت میں آئے تو یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یار اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا, میری اس وقت 62 سال عمر ہے, تو میں نے تو کوئی اچھا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے.
जो भी आता है वो एक से बढ़कर एक आता है। तो ये जो लोग इलेक्शन में खड़े इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है? जरा मेरे हिसाब से तो कोई भी ईमानदार नहीं है। तो वोट तो किसी को देना होगा ना इनमें से? नहीं तो अब तो हमने ये सोचा कि अब तो वोट देने नहीं है। क्यों कि वोट एक इंसान की ज़िंदगी की अमानत है। यानी एक वोट देना एक किसी ऐसे आदमी को कि जो सही ईमानदार आदमी हो, लेकिन इस वक्त हमें कोई ईमानदार आदमी नज़र नहीं आ रहा है। जी, शहर की इस गर्मा गर्मी और गहमा गहमी के से होते हुए जब हम एक और एरिया में जा रहे थे तो सोचा कि इस नौशहरा की एक बड़ी मशहूर चीज़ जिसको आपने पिछले 2-3 दहाइयों में कई बार खबरों में सुना और वो मुसलसल आपकी खबरों में रहा, वो दरियाए काबल था। यह दरियाए काबल जो कि नौशहरा से होते हुए गुजरता है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नौशहरा बना ही इस दरिया के दोनों तरफ है, एक नौशहरा कला और एक दूसरी तरफ का नौशहरा। तो इस दरिया ने इस नौशहरा को कई बार तबाह किया और इस तबाही की बाद दोबारा आबादी ने इसकी सियासत में और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए लोगों के वोटों पे भी काफ़ी असर डाला। मेरे साथ इस वक्त मेरे हमकार सहाफ़ी शहाबुर रहमान मौजूद हैं जो ख़ुद इसी हलके में रहते हैं। उनसे जानते हैं कि इस हलके में इस दरिया की क्या अहमियत है और ये किस तरह यहाँ की सियासत पे असरअंदाज होता है। जी शहाब, बताएंगे कि ये दरिया जो है इसका क्या असर है इस इलाके पे? बहुत शुक्रिया सर। देखिए, इस दरिया ने 2 मरतबा नौशहरा को तबाह किया है। एक मरतबा 2010 में बड़ी सतह पर इस नौशहरा को तबाह किया तो दोनों साइड अतराफ जो है नौशहरा और नौशहरा कला 60% ये जो है इलाका, ये पूरा इलाका इसमें डूब चुका था। फिर यहाँ के जो सियासतदान थे, परवेज़ खटक साहब नामी ग्रामी वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो पुश्त आपको ये नज़र आ रही है पूरी, ये अटक तक ये पुश्त बनी है। इस पुश्त की वजह से अभी 2022 का जो फ्लड आया था ये साइड तो उससे बचा है, लेकिन वो साइड उससे इफेक्ट हुआ था। लेकिन अभी जो है यहाँ के जो लोग हैं वो ये सोच रखते हैं कि इस दरिया की जो सैलाब ने हमें तबाह किया, तो हर साल ये एक टेंशन रहती है यहाँ के जो करीबी लोग हैं, इलाके जो है आबाद है, मानसून में ये टेंशन रहती है कि ये जो पुश्ते अगर ना होते तो ये क्या हालत होती? पुश्ते अगर ना होती तो अभी जो 2022 का जो सैलाब आया था तो ये यहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है वो ये बता रही है कि ये सैलाब 2010 से भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकता था अगर ये पुश्ते ना होती। तो उस साइड में लोगों की अपनी गफलत की वजह से फ्लड ने उस एरिया को इफेक्ट किया था और पुश्तों की वजह से नौशहरा इस बार 2010 की जो तबाही आई थी उससे बच चुका है। यानी पानी उससे ज्यादा था? पानी उससे ज्यादा था। अच्छा, फिर जब यहाँ पे इलेक्शन होता है, ये जो पुश्ते हैं, ये जो बने हैं, ये जो रस्ते दोबारा बनते हैं, ये किस तरह इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं? ये सिर्फ इस तरह हर इलाके के जो होते हैं डेवलपमेंट काम ही नजर आते हैं। यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट काम की बात करें, पुश्त तो नजर आती है, इसने तो नौशहरा को बचाया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे जिले की बात करें तो ये किस्सा ओवरकोट का बन जाता है कि सामने तो आपको चीजें नजर आती है लेकिन अंदरून जो इलाके में जो मसाइल है वो अभी भी उसी तरह है। मैंने खुद नौशहरा में देखा बहुत सारे मसाइल। सबसे बड़ा मसला तजावुजात का है, नक्कासी आब का है, पीने का पानी का है, बिजली और गैस का है, बहुत सारे मसाइल अभी भी मौजूद हैं। अभी भी वही मसाइल के अंबार है, वो अभी भी हल नहीं हुए। वज़ीर आला भी यहाँ के रह चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला नहीं, अवामी नेशनल पार्टी के वफाकी वज़रा रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रह चुके हैं, इस तरह दीगर और जमातों के यहाँ पे अहम रहनुमा रह चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो स्कूलों के सरकारी स्कूल के अगर आपको मैं मसाइल बताऊँ, सामने तो हमें उस तरह नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर भी और रोड के किनारे आबादियाँ डेवलपमेंट काम हो चुके हैं कि हम उससे ये जायज़ा लगा सकें कि यार यहाँ पे जो है डेवलपमेंट काम हुए हैं। लेकिन अगर हम अंदरून ज़िला नौशहरा घूमें, उसको देखें तो वहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे अभी भी टाटों पे पढ़ते हैं। वहाँ के स्कूल अभी भी आबाद नहीं है जिस तरह होते हैं। कहीं पे असातिज़ा की कमियाँ, कहीं पे कोई जो भी हुक्मरान आता है अपने इलाके में काम करता है, जो MPA MNA होता है उसका इलाका आबाद होता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं वो उसके इलाके अभी भी उसी तरह ही अनडेवलप है। अगर यहाँ के आपने अभी खुद नौशहरा घूम चुके हैं, नौशहरा आप सारा देख चुके हैं, यहाँ के लोग अभी भी उसी मसाइल से दो चार, अगर स्विगी गैस का मसला देखें, इसी तरह LPG का मसला देखें, इसी तरह दीगर तजावुज़ात का मसला देखें, वो अभी भी इसी तरह ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा मर्दान के जो से मिलाती है उस पुल के पास। यहाँ से आपको ट्रैफिक नज़र आती है। ये सारी की सारी ट्रैफिक जो है ये नौशहरा से होते हुए मर्दान और मर्दान के बाद मलकंड और फिर जितने भी अजला हैं चतराल तक ये यहाँ से जाती हैं। और इसके अलावा आप स्वात के भी प्याला मेन रास्ता यही था। इसके बाद जब जितने भी मोटरवेज़ बने उसके बाद वो रास्ते जो है वो मसरूफ़ हो गए, लेकिन सबसे पहला और तारीख़ी रास्ता यही था। यहाँ पर मेरे साथ इस इलाके के कुछ लोग मिले, उनसे ज़रा बात करते हैं कि जी आप बताएं कि ये जो NA-33 है और ये जो सूबाई असम्बली के हलके हैं, यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस बार लोग किस चीज़ को देख के वोट देंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, जिस तरह आपने नौशहरा का विज़िट किया, नौशहरा में तो आप लोग घूमे होंगे, देखा होगा ये जिस स्पॉट पर आप खड़े हैं, ये नौशहरा का मेन नौशहरा सिटी का जो है ना इंट्रेंस है। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये इस दरिया के किनारे ये जो इतना बड़ा ये दीवार बना हुआ है ना, 2010 के सैलाब के बाद जितने हमारे नौशहरा का नुकसान हुआ, जितनी तबाही हुई, परवेज़ खान खटक की वाहिद इस तरह की बंदा है जिसने नौशहरा पर यह एहसान किया कि इस अवाम को, इस पाकिस्तान, इस खैबर पख्तूनख्वा नौशहरा को ख़ासकर सैलाब से बचाया। इस तरह परवेज़ खान खटक के और बहुत ज़्यादा कारनामे हैं। यहाँ पे अगर कोई वोट देगा तो काम की कारकर्दगी की बुनियाद पर देगा। तो जहाँ पर आप देखते हैं काम करने की हो, तो वो तो एक परवेज़ खटक ने किया है। अगर मैं आपको वो बताऊँ तो काजी कम्प्लेक्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नौशहरा का एक ग्रेड अस्पताल है, खटक साहब ने बनाया है। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि काम करने की बात हो ना, तो खटक साहब के साथ नौशहरा में जितने भी ख़ानदान है ना, वो खटक साहब को सिर्फ इस वजह से सपोर्ट करते, या इसाक खटक उसका बेटा जो है, या परवेज़ खान खटक, वो यहाँ पे हल्के में लोगों के लिए काम करते हैं। सबसे उसका बड़ा कारनामा जो है ना, हम नौशहरा की अवाम के लिए ये पुलिस का निज़ाम जो है ना, ये पुलिस की जो बदमाशी है ना, वो उसने ख़त्म की है। सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस की बदमाशी ख़त्म की है, पुलिस को उसका एक अच्छा निज़ाम बने। अभी हम हर कोई जा सकते हैं, थाने जा सकते हैं, सरकारी अस्पताल जा सकते हैं, सरकारी दफ्तर जा सकते हैं। सिर्फ वाहिद ये नौशहरा है कि खटक साहब की वजह से ना हर कोई जो है ना आपकी बात सुनेगा, सरकारी जितने भी अफसरान हैं। वोट दिया है? दिया है मैंने, पिछले तो पीटीआई को दिया था, बस इसकी कारकर्दगी को देखकर इंशाल्लाह एनपी को वोट दूंगा। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों की क्या तवक्कुआत है इलेक्शन से? इंशाल्लाह पुरअमन इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह 8 फरवरी को लाटेन इंशाल्लाह जीतेंगे। क्या ऐसा देखें कि जो पिछली बार उनसे गलतियां की तो इस बार वो ठीक हो जाएं? कोशिश करें नए चेहरे सामने आए तो बेहतर होगा। कितने दफा एक्सीडेंट हुआ इधर, ना ब्रेकर है यहाँ पे, ये लाइटिंग का मसला बना हुआ है, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। नौशहरा की एक और तहसील जहांगीरा तहसील में पहुंचा हूं। यहाँ का एक कस्बा है अकोड़ा खटक, इसको भी आप बहुत अरसे से खबरों में सुनते रहें, क्योंकि यहाँ पर सबसे मशहूर, जो दुनिया के चंद मशहूर मदारिस में एक मदरसा हक्कानिया यहाँ पे है। इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं वो यहाँ से लोग आके तालीम हासिल करते हैं। अकोड़ा खटक बहुत मशहूर जगह है, यहाँ से मौलाना समीउल हक ने भी इलेक्शन लड़ा था। वो ख़ुद जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी जो उनका दड़ा था, वो उसके सरबराह थे मरहूम। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये भी हल्का NA-33 ही है और परवेज़ खटक साहब और उनके मुखालफिन यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नौजवान नज़र आए हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप क्या काम करते हैं? ये मेरा तो इधर ये ट्रैवल एजेंसी है, ऊपर काम करता है प्लाजा में, बाबा प्लाजा में। जी सर। तो एक बार फिर इलेक्शन होने जा रहा है, तो इससे पहले कभी वोट दिया है? दिया है मैंने, पिछले तो पीटीआई को दिया था, बस इसकी कारकर्दगी को देखकर इंशाल्लाह एनपी को वोट दूंगा सर इस बार। यस बिल्कुल जी। तो नाराजगी की क्या वजह थी? बस ये 10 साल जो हमने कितनी वो खाई है ना पीटीआई और इस हुकूमत की, तो इंशाल्लाह आइंदा एनपी को वोट देंगे। तो ऐसा क्या था कि आप तवक्को कर रहे थे कि वो करेंगे और वो ना हो सका? जी, जो खान साहब ने वो क्या थे कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, और ये लोग इधर काम के लेंगे, तो वोट उसको दिया था। इस दफ़ा उसमें खान साहब ने जो कहा था उसमें तो कुछ नहीं हुआ। हालान के हालात और बिगड़ गए और अच्छा की तरफ जो है ना बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहे। तो लोग तो जो खान साहब को पसंद करते हैं वो तो कहते हैं कि वो कुछ करे ना करे, हमने उनको वोट देना। और वो कहते हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं इस सूबे में, तो इस सूबे में तो उनका वज़ीर आला रहा है जो इस बार फिर इलेक्शन में खड़े हैं, परवेज़ खटक साहब। तो क्या आप नहीं मानते कि इतना काम हुआ है यहाँ? नहीं, अगर मैं खुद जो रोज़गार से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं तो कुछ नहीं नज़र कुछ नहीं आ रहा है कि आइंदा भी एक लोग कुछ कर लेंगे या नहीं करेंगे। कुछ पॉजिटिव तो शहर तो हमने देख लिए, तो ये कस्बे जो हैं जिस तरह अकोड़ा खटक है, तो ये बाज़ाब्ता शहर नहीं है। तो यहाँ के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? हमारे सर आप खुद देख लो, पहले तो सबसे बड़ी हमारी जो इधर का है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो ना गरीब तबका है,
تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پہ ہمارے غریب کے لیے یہ نہیں. ابھی تک تو میرے خیال ہے کچھ نہیں ہوا. جو یہ نعرے لگا رہے تھے پہلے کہ بھائی یہ ہوگا تو ویسے تو ہمیں کچھ نہیں دکھا. آپ کس کو ووٹ دیں گے اس بار؟ میں تو NP کو ووٹ دیں گے. تو یہ جو اس سے پہلے کبھی آپ نے ووٹ دیا تھا؟ جی بالکل دیا. کس کو دیا؟ میں نے وہ بھی NP کو دیا ہے سر. NP کو دیا تھا. تو وہ جو NP کی کارکردگی ہے ان کی بھی تو حکومت گزری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بھی اس قابل نہیں تھی کہ ان کو ووٹ دیا جائے. تو آپ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں سر, اگر آپ دیکھو سر تو پہلے سے جو خضر کے زمانے میں ہم نے جو دیکھے ہیں نا, یعنی اسکولز دیکھو آپ, کالجز دیکھو, یونیورسٹی, سب کے بچے تقریباً وہی سارے جو ہے نا ادھر پڑھ رہے ہیں. تو میں تو دیکھ رہا ہوں جو کارکردگی اس نے کیا ہے تو ویسے تو کچھ یعنی کسی نہیں کیا میرے خیال میں. یہ جو 75 یعنی 76 ایئرز ہو گئے نا پاکستان کے بنے ہوئے, میرے خیال میں اتنا کام کسی نے نہیں کیا. یعنی آپ کی بھی PTI کی حکومت سے توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ بالکل بالکل. جیسے خان صاحب کے ورکر ہیں ابھی الحمدللہ ابھی بنے ہیں. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سر میں باہر ہوں. باہر ملک میں رہتے ہیں؟ اچھا, اوورسیز پاکستانی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے تمام جو ہیں وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ جو میں نے دیکھا ہے, جو اس نے کہا ہے, تقریباً میرے خیال میں بہت سے لوگ ادھر سے بھی آئے ہیں اس توقع پہ کہ بھائی خان صاحب نے ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو جو ہم ابھی وہ بیچارے دوبارہ سے ادھر سے ویزوں پہ جا رہے ہیں باہر ملک. آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, لوگوں کی کیا توقعات ہے الیکشن سے؟ انشاءاللہ پرامن الیکشن ہوئیں گے انشاءاللہ. 8 فروری کو لاٹین انشاءاللہ جیتیں گے. ادھر سے ہمارے یہ ہے کہ PTI نے 10 سال حکومت کی, ادھر ہمیں بتائے کہ پروجیکٹ کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. سارا ماحول ایسے اکوڑا میں محرومی ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہم NP کو ووٹ دیں. سب ہمارا اکوڑا والے نے تیار کیا ہے کہ ہم NP کو ووٹ دیں گے. تو آپ سے یہاں سے تو بہت عرصہ پہلے سے ہی NP جیتتی آئی تھی, تو یہ مسائل جو ہیں اس کی ذمہ دار NP نہیں ہے؟ نہیں, اس مسائل کے ذمہ دار تو یہ PTI ہے. 10 سال سے PTI کی حکومت تھی, سارا بیڑا خرک کر دیا PTI نے. تو یہ 10 سال کے مسائل ہیں سارے؟ ہاں 10 سال کے مسائل. اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے نہیں تھے. ابھی بھی 8 گھنٹے بجلی بھی نہیں ہوتی ہے. سب مسائل ہیں ادھر کے. اور ادھر کے ہم کوئی مسئلہ آ جائے تو کب پشاور میں کوئی ہوتا ہے, کوئی اسلام آباد میں ہوتا ہے, ہمارا کام نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. ابھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم NP کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. تو NP کا امیدوار کہاں کا ہے؟ مسعود عباس خٹک, اکوڑا خٹک کا ہے. تو آپ اپنے علاقے کے بندے کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. الیکشن سے کیا توقع ہے آپ کی؟ تو توقع تو اچھی رکھنی چاہیے ملک کے لیے, عوام کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ملک کے مسائل کا حل ہے؟ ہاں کیوں نہیں, جمہوریت اصل جمہوریت ہو تو بالکل کیوں نہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے, تو وہ ایسا کیوں زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ مطلب اسمبلی جو ہے نا اپنے کام نہیں کر رہی نا مکمل طور پر. ہر ایک کوئی بس یہی چاہتا ہے کہ میں بس اسمبلی ہال تک پہنچ جاؤں, باقی یعنی وہ جو پہنچنے والے ہیں مسئلہ ان میں ہے, مسئلہ اسمبلی میں نہیں ہے اور جمہوریت میں بھی نہیں ہے. جمہوریت میں بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, لوگوں کیا کہیں گے کہ اس بار ووٹ دیتے ہوئے وہ کیا ایسا دیکھیں کہ جو پچھلی بار ان سے غلطیاں کی ہیں تو اس بار وہ ٹھیک ہو جائیں؟ کوشش کریں نئے چہرے سامنے آئیں تو بہتر ہوگا. تو لوگ تو وہی پرانے والے سارے کھڑے ہیں. تو اصل میں سب گیم تو پیسے کی ہے نا سر. اب میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو آپ سے میرا ایک سوال ہے, لوگ بھی تو بغیر پیسے والے کو ووٹ نہیں دیتے. یہی ہے. تو پھر مسئلہ تو لوگوں میں نہیں ہوا؟ لوگوں میں بھی ہے نا. تاڑی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پیسے والے زیادہ کھڑے ہیں تو وہ پیسے والے ہی جیت جاتے ہیں, لیکن ہمارا سوال پھر بھی وہی ہے کہ اگر صرف پیسے والے جیت رہے ہیں تو پھر ووٹ تو عوام ہی دیتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ تو دونوں طرف موجود ہے. بہت شکریہ جی. آپ کیا کہیں گے الیکشن کے بارے میں؟ ہم عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. یار آپ تو سارے میرے خیال میں یہاں کا امیدوار جو ہے وہ یہاں رہتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کا. ہاں جی. اچھا 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 اچھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مدرسے میں سبق پڑھتا ہوں. مدرسے میں؟ ہاں جی. تو مدرسے والے جو ہیں وہ تو دینی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں نا. ہم لاٹین کو ووٹ دیتے ہیں. آپ لاٹین کو دیں گے, اور آپ؟ ہم بھی لاٹین کو دیں گے. گراؤنڈ میں آپ کو کیا چاہیے؟ گراؤنڈ میں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں نا, پچ چاہیے جی. تو اس میں پچ نہیں ہے؟ پچ نہیں ہے, گراؤنڈ ہے, لیکن وہ PTI والے نے بنایا ہے کچھ بیمار. تو مدرسوں کے طلبہ تو کرکٹ نہیں کھیلتے, آپ کیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ دیگر کا ٹائم ہوتا ہے نا, پھر کرکٹ کھیلتے ہیں نا. اچھا, مدرسے والے منع نہیں کرتے؟ نہیں منع کرتے. تو آپ اکوڑا خٹک کے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ہاں, دارالعلوم حقانیہ میں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدرسے کے طلبہ ہیں, لیکن اس بار ہم ووٹ جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کو دیں گے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ
इनको इन ज़्यादा ज़रूरत जो है, इन्हें उस जो ग्राउंड है उसमें पिच नहीं है, तो ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो इनको पिच चाहिए, और ये पिच ये कहते हैं अभी तक नहीं बनी। तो ये जो हुकूमत 10 साल पहले भी रही, इसमें पिच वगैरह नहीं बनी थी? नहीं बनी हुआ है, ग्राउंड ले लिया, वो भी कुछ ख़राब सा है, गोल नहीं है, छोटा है, बड़ा है। तो वो जो ऐलान हुआ था कि हर तहसील में क्रिकेट ग्राउंड बनेंगे, तो यहाँ कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं बना? अच्छा, इंशाल्लाह नेशनल जीत जाए फिर बनेगा इंशाल्लाह। तो आपके साथ आपके उम्मीदवार ने वादा किया कि इंशाल्लाह बनेगा। ये कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा अवामी नेशनल पार्टी का तो पिच बन जाएगा और फिर हम अच्छे तरीके से खेलेंगे। ये सब लोग कह रहे हैं इनके अपने अपने मसाइल हैं। तालिब इल्मों के क्या मसाइल है और आपका क्या मसला है? हमारे मसाइल तो ये है कि यहाँ पर जो लड़कियों का कॉलेज वगैरह नहीं है, तो हमारी लड़कियाँ वहाँ नौशहरा जाती है, और अब सेंजी का भी मसला होता है, तो इसीलिए हमारा जो ख़वातीन का जो स्टडी है तो वो नहीं हो रहा है। तो आपकी जो बहनें हैं जो घरों में ख़वातीन हैं, अगर उनका कॉलेज जाने का दिल चाहे तो वो कहाँ जाती हैं फिर? वो नौशहरा जाती है। नौशहरा यहाँ से कितना दूर है? बहुत दूर है, 19 किलोमीटर। और वो किस में जाती हैं? रिश्के में। अभी सेंजी का तो बहुत मसला है ना, तो किराए का भी मसला है। ये जो इलाका है ये कहते हैं कि यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या समझते हैं यहाँ के बड़े मसाइल क्या हैं? मसाइल तो बहुत है। क्या है? बहुत मसाइल है, मतलब ये लेटिंग का मसला है, रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ वो ओवर फ्लाई बना हुआ था, ये देखो आप देख रहे हैं ब्रिज लगे हुए हैं, अभी वो टूटा हुआ है, इसका भी रिपेयर नहीं किया गया। ये लेटें लगाए हैं, इसका भी खराब है, इसको भी सेटिंग नहीं की किसी ने। मसले तो बहुत है मगर हुकूमत तवज्जो ही नहीं देता है। एक तो हुकूमत होती है जो असेंबली में बैठी होती है, एक होती है सरकारी लोग। सरकारी लोग भी काम नहीं करते। नहीं है, अगर काम करते तो आपको नजर आते थे ना। ये रोड के सिर्फ सियासतदान तो हुकूमत नहीं करता, उसके साथ एक ब्यूरोक्रेसी होती है। जी सरकार होती है, वो सरकार काम चलाती है, वो भी काम नहीं कर रही। नहीं है ना, अगर काम करते तो हम लोग क्यों शिकायत करते थे ना। तो ये काम नहीं हो रहा है। अभी देखो ओवरफ्लाई इतना जबरदस्त बना हुआ था, मदरसे बच्चे ऊपर रोड नहीं कर, कितने दफा एक्सीडेंट हुआ इधर, ना ब्रेकर है यहाँ पे, ये लाइटिंग का मसला बना हुआ है, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। जीटी रोड का बहुत बड़ा मसला भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे लोगों के सड़क पार करने के लिए कोई जगह नहीं है, गाड़ियाँ भी मोड़ने की जगह नहीं। वो एक ओवरहेड पुल है जो कि आधा टूटा हुआ है और आधा बना हुआ है। जी, इस हल्के से जाते जाते इस दोस्त ने रोका कि ये मुस्लिम लीग के बारे में बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के इख्तियार वली जो यहाँ से NA-33 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आप इख्तियार वली के हामी हैं? मेरा नाम अदनान रहमदिल है, साबिका यूथ उम्मीदवार है अल-हक विलेज कौंसिल से। हमें इख्तियार वली पसंद करते हैं। इख्तियार वली का खिदमत तहसील नौशहरा में बहुत ज़्यादा है। बिजली के देखो हर गली में, हर मोहल्ले में बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लोगों को देते हैं। ये जो मेरे दोस्त हैं ये कहना चाह रहे हैं, मैं इनकी बात समझ रहा हूँ क्योंकि ये पश्तो बोलते हैं, इनको उर्दू नहीं आती। ये कहते हैं कि इख्तियार वली चूँकि एक बार मुंतखब हुआ है यहाँ से, वो कहते हैं कि वो हमारे हल्के से मुंतखब नहीं भी हुआ था, लेकिन उसने फिर भी आके हमारे इलाके में काफ़ी काम किया है। क्या इन गुज़िश्ता 3-4 अदवार में हल ही नहीं हुए? मसाइल तो हल हुए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मसाइल के हल करने में किसी दिलचस्पी भी नहीं है। नौशहरा में काम हुए हैं, मेरे नज़र में एक जनरल बाबर साहब ने किया है या परवेज़ खटक साहब ने किया, लेकिन सारे मसाइल तो हल नहीं हो सकते। नौशहरा के मसाइल से जो बड़ा हुआ है और इसके सारी जिम्मेदारी जी वो जो सियासतदान है जिन्होंने तवील अरसे तक नौशहरा पर हुक्मरानी की है, इनकी वजह से मसाइल है। एक मसाइल नहीं है, बहुत से मसाइल है। इस वक्त नौशहरा के मशहूर प्रेस क्लब में दाखिल हो गया हूँ। जैसा कि आपको मालूम हो कि आम आवाम की एक राय होती है, लेकिन सहाफ़ी की भी अपनी एक राय होती है। वो तमाम लोगों को देख के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम फरीक़ैन को देख के एक राय कायम करता है। वो उसका काम ही होता है कि वो तारीख़ और माजी की बुनियाद पे मुस्तक़बिल के लिए तज्ज़िया करे। तो इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि इस प्रेस क्लब में हमारे 4 अच्छे सहाफ़ी दोस्त जो कि यहाँ के नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं कि वो इस नौशहरा की माजी और तारीख़ की बुनियाद पे क्या प्रेडिक्ट करते हैं, हुआ क्या है, होना क्या चाहिए, आगे क्या हो सकता है, वो ये तज्ज़िया करें तो ये बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे साहब, आपको तो हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, कई दहाइयों से आप कवरेज कर रहे हैं। ये जो नौशहरा में अभी हम घूम फिर रहे थे तो लोगों ने बताया कि मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं।
तो ये मसाइल क्या इन गुज़िश्ता 3-4 अदवार में हल ही नहीं हुए? मसाइल तो हल हुए नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर मसाइल के हल करने में किसी दिलचस्पी भी नहीं है। किसी सियासी जमात ने इस तरह तवज्जो नहीं दी है। आप देखें नौशहरा में कितने मसाइल हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊँ 21वीं सदी में बस स्टैंड का जो मसला है, अभी तक उस पर लोग तवज्जो नहीं दे रहे। अड्डा यहाँ बना हुआ है, ट्रैफिक यहाँ जाम रहती है 24 घंटे, ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला है। आप बताएं हर जगह पर अड्डे बाहर निकल गए, यहाँ अड्डा अभी तक वहीं है, क्यों हो जाए? अड्डा शहर के बीच में है, बिल्कुल ये मसाइल ये बस में है। हाँ जी, अच्छा। जिसकी वजह से काफ़ी रश रहती है, रश बहुत ज़्यादा है, आवाम पैदल चल सकते नहीं है, कोई तवज्जो देता नहीं। ट्रैफिक पुलिस है वो अपने धंधों में लगी है, दूसरी पुलिस अपने धंधों में लगी है। कंटोनमेंट बोर्ड वाले हैं वो इसको यहाँ से निकालने पर राज़ी नहीं है, क्योंकि ठेकेदार से खपा होता है। तो ऐसे काफ़ी मसाइल हैं। तो ये जो गुज़िश्ता 2-3 अदवार में यहाँ पे हुकूमतें बदली और पूरी दुनिया में तो लोग इस हल्के को परवेज़ खटक साहब के नाम से जानते हैं। तो लोग कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब ही की वजह से इस सूबे में 2 बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तो वो अब एक बार फिर उम्मीदवार हैं। तो क्या उन्होंने भी इन मसाइल पे तवज्जो नहीं दी थी? नहीं, वो जहाँ तक उनका तल्लुक है ना परवेज़ खटक साहब का, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने किसी हद तक काम किया है। गैस का मसला है, सड़कों का या दरिया के किनारों में बंद मारे हैं, काफ़ी काम उन्होंने किए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर काम हुए वो उन्होंने अपने हल्के में किए, इससे बाहर हट कर नहीं किए उन्होंने काम। तो ये पूरा लोग तो कहते हैं पूरा नौशहरा उनका हल्का है। पूरा नौशहरा हल्का तो है। तो आपने अभी खुद फरमाया कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो हल्के में मसाइल होने नहीं चाहिए ना। कोई ऐसा बंदा ही आपको न मिले कि जो उनके खिलाफ कह रहा कुछ काम है ही नहीं यहाँ पर, हम क्या कहें, सब कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो काम तो हर वक्त रहते हैं। तो आपने तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी यहाँ से वज़रा रहे और यहाँ पे ये उनका गढ़ रहा, ANP का भी ये गढ़ रहा, यहाँ से काजी हुसैन अहमद साहब भी मुंतखब हुए और बाकी भी लोग यहाँ से ये तहरीक इंसाफ की भी। जब सबका कंपैरिजन करते हैं तो कैसे लगता है? ये जी मैं तो आपको सब बताऊँ, जो भी आया है उन्होंने अपना टाइम पास किया और चले गए। काजी हुसैन अहमद साहब ने ये किया कि अवाम के लिए एक सबसे बड़ा मसला जो था अस्पताल का वो उन्होंने किया, और बाकी वो डिलीवर उसने PTI ने किया। और उसके बाद में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट भी थी, तो उसमें भी काम हुए, लेकिन इतने नहीं हुए जितने चाहिए। कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई मसला यहाँ पर अभी तक लूँगा दूर पड़ो। जी बहुत शुक्रिया जी। हाजी साहब कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि आबादी बढ़ने की वजह से वो काम बार बार वो सर उठाते रहे, या बिल्कुल हुए ही नहीं है? नहीं, नौशहरा में काम हुए हैं। मेरे नज़र में एक जनरल बाबर साहब ने किया है या परवेज़ खटक साहब ने किया, लेकिन सारे मसाइल तो हल नहीं हो सकते। अब अस्पतालों के हालात देखे, तमाम महकमों में आप देखें क्या कुछ नहीं हो रहा। अस्पतालों में ना अद्वियात है ना कुछ है। अब ये पुल आपके सामने ये है, इसमें पुल तो बन गए, बहुत ऊपर बन गए, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। नेस पे लेट है, नेस पे कोई पर्दा है, ये यहाँ पे ये प्रेस क्लब है, उस साइड पे मस्जिद है, तो यहाँ पर किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो ये करोड़ों रुपए इस पे लग गए, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, नुकसान ज़्यादा फ़ायदा नहीं। आप कहते हैं कि ये जो पुल है ये सिक्योरिटी की वजह से अभी तक इसमें लेट नहीं है। इस पे 35-40 करोड़ रुपए लग चुके हैं, इस पे लेट का इंतजाम नहीं है। इसका तो फिर ये मतलब है कि नौशहरा में पैसे लगे हैं लेकिन उसकी मनसूबबंदी ठीक नहीं। पैसे बहुत लगे हैं, अरबों रुपए लगे हैं, परवेज़ खटक ने अरबों रुपए लगवाए हैं, लेकिन हमें तो कुछ बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन जो है वो पार्टी की बुनियाद पे होगा या शख्सियत की बुनियाद पे नौशहरा में हो रहा है? चल, पार्टी शख्सियात भी होती है, शख्सी वोट भी होती है और पार्टी का भी होता है। अगर अकेला शख्स हो तो अकेले नहीं जीत सकता। आप क्या समझते हैं कि ये जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त इलेक्शन के, तो ये किस तरफ जा रहे हैं? नौजान भाई, जिस तरह आपने मसाइल की बात की, नौशहरा तो मसाइल से जो बड़ा हुआ है और इसके सारे ज़िम्मेदार जी वो जो सियासतदान है जिन्होंने तवील अरसे तक नौशहरा पर हुक्मरानी की है, इनकी वजह से मसाइल है। एक मसाइल नहीं है, बहुत से मसाइल है। एक तो एक जो है स्टूडेंट है, तलबा है, मेल या फीमेल है, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी नौशहरा में कोई नहीं है। दूसरी तरफ देखिए किसान देखे तो उनके लिए भी बड़े मसाइल है। 5 डैम इधर नौशहरा में बनाए गए, अरबों रुपए उस पर जो है हुकूमती ख़जाने से खर्च हुए, लेकिन वो डैम है उसमें न पानी टपकता है, न बारिश का पानी स्टोर होता है, न उन ज़मींदारों को, न किसी किसानों के बागातों को या इनकी फसलों को कोई इधर से फ़ायदा पहुँचाए। सिर्फ जो अपने लोग हैं बस उनके लिए डैम के ठेके दे दिए गए, उन्होंने माल कमाई कर ली, बाकी सब खैरियत है। सेहत की जानिब आ जाए तो इधर बहुत बड़ा अस्पताल दावा किया जा रहा है कि सूबे का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है नौशहरा मेडिकल कम्प्लेक्स, उसमें जो अपना बोर्ड बनाए हुआ है एक सियासी शख्सियत के जो है वो
परवेज़ खटक के, उसने अपने दफ्तर रोज़गार कायम किया है। ऐसे लोग 1,20,000 रुपये उनको तनख्वाहें देते, मैनेजर की पोस्टों पर उनके साथ घूमते, उनके ज़ाती मुलाजिम हैं। वहाँ पर जो है वो डॉक्टर वो सब सरकारी मुलाजिम कम, और उनके जो परवेज़ खटक साहब है उनके जो ज़ाती ग़ुलाम बन चुके हैं। वहाँ पर जो है डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती, बहुत बड़ा सूबे का अस्पताल करार दिया जा रहा है। तो नौशहरा में सेहत के लिहाज से भी तबाह है। तालीम की जानिब जाएँ तो वहाँ पर भी है वो लोग, अब भी परवेज़ खटक के अपने गांव में लोग टाट पर जो है अब बच्चे ये तो चलें कारकर्दगी की बात हुई। आइंदा इलेक्शन किस किस जमात के माबैन हो सकता है? यहाँ पर जो अब तक हम सूरत हाल देख रहे हैं कि नौशहरा में तो जो है वो एक नई सियासी जमात जो बनी है उनका अपना तंजीमी ढांचा भी नहीं है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर से लेकर तहसीलदार से लेकर DPO से लेकर DSP से SHO से लेकर पटवारियों तक स्कूल टीचर तो सब जो है उन्होंने उनके लिए काम कर रहे हैं। वसाइल, सरकारी वसाइल। तो आप क्या समझते हैं कि मुकाबला किस किस अब तो मुकाबला है सरकारी मशीनरी के, इंतजामी मशीनरी उनका मुकाबला है, और बाकी जो दीगर सियासी जमातें उनके माबैन मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा के इस अहम ज़िला नौशहरा में पूरा दिन गुजारने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अभी तक बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिनके हल की तरफ अब बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, क्योंकि लोग कहते हैं कि काम तो बहुत हुआ है, पैसे बहुत लगे हैं, लेकिन वो उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं थी पैसे लगाने की, जिसकी वजह से अवामी मसाइल अपनी जगह पे अब भी मौजूद हैं। तो आइंदा आने वाली हुकूमत के सामने जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो पैसे एक ऐसे तरीके से लगाएं कि जिसके दूरस असरात भी सामने आएँ। किसी और अहम हल्के के हवाले से जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।